जी आए प्यारे विद्यार्थियों, 6वीं जमात की 6th क्लास की मैथ की बुक गणित की किताब की तुहाडी एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर है एलीमेंट्री शेप्स अर्थात आरंभिक आकारां नूं समझना। सो आओ वो सवाल करने शुरू करिए। पहली उस चैप्टर की उस अध्याय की पहली एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तुसी नोटबुक लै लो, नाल पेन लै लो तो वीडियो पॉज करके ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਾਏ ਮੇਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਮੇਅਰ ਮੈਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਬਾਊਟ ਅਵਰ ਜਜਮੈਂਟ, ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੇ ਫਰਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲੈਂਥਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਤੇ ਦੇਖੋ, ਫॉर एग्जांपल इट इज़ ऑब्वियस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ that AB is longer than CD। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CD ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ CD ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ AB ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AB ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ, AB ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ CD ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। पर वी आर नॉट श्योर इफ PQ और RS इज़ लॉन्गर। हुण जे PQ इदां होवे एक रेखाखंड ते दूजा इदां होवे, हुण देख के नहीं पता लगता, भुलेखा पै जाएगा, गलती की संभावना है। सो मेयर ऑब्जरवेशन हुंदा है केवल देख के दसना। सो जे ते फर्क बहुत लंबा है, बहुत वड्डा है ना, फिर तो मैं दस सकदा कि किहड़ी लंबी है। पर जे लागे लागे है, फर्क बहुत थोड़ा हैगा, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ 10.25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਾਏ ਮੇਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ओके, वेरी गुड। हुण दूजे सवाल वाल वधिए। ओके, दूजा सवाल है बच्चों, वाई इज़ इट बैटर टू यूज़ अ डिवाइडर। एक तो होंगी ना प्रकार कंपस, तो एक होंगे सूआ जिस दोनों पासे सूइयां लगियां होंदियां है ना, मतलब दो लत्तां ते दोनों ते सूई होंदी, उन्होंने कहते डिवाइडर। दैन अ रूलर होंगे फुट्टा, जिते एक पासे इंचां की मार्किंग होंगी है, दूजे पासे सेंटीमीटर की मार्किंग होंगी है। वाइल मैजरिंग दी लेंथ ऑफ अ लाइन सैगमेंट। कहते दसो कि रेखाखंड की लंबाई नापन लगे डिवाइडर जड़ा है वो ज़्यादा वधिया है बजाय फुट्टे तो, की कारण है? और देखिए, इट इज़ बैटर टू यूज़ अ डिवाइडर दैन अ रूलर। यह गल ज़्यादा वधिया है जे असी डिवाइडर यूज़ करिए वो मुकाबले, रूलर के मुकाबले, फुट्टे के मुकाबले, बिकॉज देयर इज़ रूम फॉर एरर। यह बच्चों हूँ अंग्रेजी का एक मुहावरा टाइप है, रूम फॉर एरर। यदा मतलब है गलती की संभावना। ठीक है, देयर इज़ नो रूम फॉर एरर, कोई गलती की संभावना नहीं हैगी वाइल मैजरिंग दी लेंथ ऑफ लाइन सैगमेंट विद अ डिवाइडर। जे असी डिवाइडर दे नाल नापांगे लाइन सैगमेंट रेखाखंड की लंबाई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गलती की संभावना कोई नहीं हैगी, क्योंकि सूई भी बिंदु जिन्नी पतली जी हैगी है, एक सिरे ते एक सूई रखांगे, दूजे सिरे ते सूई रखांगे तो नाप हो जाएगा। ठीक है, पर ਉਹਦੇ उल्ट देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पोजीशनिंग एरर। पोजीशनिंग में फुट्टा टेढ़ा रख हो गया, अगे रख हो गया, पीछे रख हो गया, है ना,
ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਰਰ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ, ਇਫ ਦੀ ਆਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਬਵ ਦਾ ਮਾਰਕ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਪ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਰਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫੁੱਟੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਰੂਲਰ ਮੇ ਕੌਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਜੇ ਫੁੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਘਿਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਘਿਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਪਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫॉर these reasons divider is better than ruler. Divider gives us more accurate measurement. ठीक है बच्चों, आगे चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। कोई भी रेखाखंड खिंचो, से ए बी, मान लो वो ए बी है, फिर कहते टेक एनी पॉइंट सी, कोई भी एक बिंदु सी लवो, किथे लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए ਅਤੇ बी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਬੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੋ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਏ ਸੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸੀ ਜਮਾ ਸੀ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਲਿਆ ਟੇਕ ਅ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੈ ਲਓ, 7 ਲੈ ਲਓ, 14 ਲੈ ਲਓ, 15 ਲੈ ਲਓ, 17 ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਕ ਅ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੇਕ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏ ਬੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ 0 ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ मैं 7 सेंटीमीटर ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है। ऑन मैजरिंग वी फाइंड दैट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ਇਹ देखो ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी, बी सी ਜਿਹੜਾ ਹੈ बी सी इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, ਇਹ देखो ਇਹ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 6, ओके, ਇਹ 6 सेंटीमीटर हो गया। आल्सो ए सी जमा बी सी, ਹੁਣ ए सी जमा बी सी कितना हो गया 7 जमा 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बट ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए बी नापिया सी 13 है 13, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 10, यह गल सिद्ध हो गई ए बी इज इक्वल टू ए सी जमा बी सी, यह गल सिद्ध हो गई। उन्होंने पूछा सी कि ए बी ए सी जमा बी सी के बराबर है, सो ए सी जमा बी सी भी 13 आ गया तो ए बी भी 13 आ गया, सो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਗੱਬੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਾइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं हैगा, ठीक है बच्चों। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन आ लाइन, जे ए बी ਅਤੇ C 3 ਬਿੰਦੂਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਚ ਦੈਟ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ कि ए बी 5 सेंटीमीटर होवे, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर होवे, बी सी 3 सेंटीमीटर होवे, तो ए सी जड़ा है वो 8 सेंटीमीटर होवे। विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन दी अदर टू, तो दसो किहड़ा बिंदु बाकी दो बिंदुआं दे विचकार है, कि ए बी ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है, ਜਾਂ C A और B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है, ਜਾਂ B A और C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है, ਇਹ पता लगाओ।
तो बच्चों यह गल चेते रखनी है, रिमैंबर, चेता रखो, इत्थे लिख लो चेता रखो जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले ने। इफ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, जे ए बी सी कोई भी 3 बिंदु किसी रेखा ते होण, ते जे इदां होवे कि ए सी जमा सी बी इज इक्वल टू ए बी, दैन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अर्थात यह देखो बच्चों, इहदा चेता रखना है ए सी ते सी बी। सो सी जिहड़ा गब्बे है, देखो दोनों के गब्बे, यह भी सी गब्बे होएगा तो दो सिरे ते होणगे ए बी। जे मैं इसी दिशा च लवां ए बी ते सी, जे मैं इसी इको दिशा च लवां, इको दिशा च नापां ए टू बी ते बी टू सी, यह देखो इत्थे आ गया है सॉरी हाँ ए टू बी ते बी टू सी, यह देखो ए टू बी फिर बी टू सी। तो यह मतलब है कि जो बी होएगा ये विचकार होएगा। ठीक है, हुण देखो ऐसी की क्या कि ए सी जमा सी बी इज इक्वल टू ए बी, दैन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। जे इदा होवे ते हुण की है, नाउ ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर है, एंड ए बी जमा बी सी विच किहड़ा आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी और इत्थे ए सी है ए सी, यह वड्डी लाइन हो गई ए सी, तो ए बी तो बी सी, मतलब बी विचकार है 5 जमा 3, यह भी 8 सेंटीमीटर आ गया, यह भी 8 सेंटीमीटर आ गया। जो पिछला सवाल जिवें किया आप थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट, ताकि तुहाडे दिमाग च गल क्लीयर हो जाए। मैं भी तुहानूं कहा सीगा बच्चों कि अगर कोई पॉइंट लाइन के उत्ते है तो फिर यदा जोड़ जमा यदा जोड़ यह पूरी लाइन की लंबाई के बराबर होएगा। सो इत्थे आ गया ना ए बी जमा बी सी 5 जमा 3 8 सेंटीमीटर, दैट इज़ ए बी जमा बी सी ए सी, दस बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। इधरों यह गल सिद्ध हो गई कि जिहड़ा बिंदु बी हैगा है वो ए अते सी दे विचकार है। देखो ए बी तो इत्थे है बी सी, जिहड़ा 2 बार आ रहा है, जिहड़ा भी बिंदु 2 बार आ रहा है, इत्थे ए एक बार आया, इत्थे सी एक बार आया, पर बी इत्थे भी आ गया तो बी इत्थे भी आ गया। ਇਹਦਾ मतलब यह होया बच्चों ਜਿਹੜਾ बी है वो ए सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, पर यदि शर्त है वे कि यह दोनों का जोड़ 5 जमा 3 है ए सी, ਜਿਹੜੇ सिरे वाले है ए सी ये बराबर होना चाहिए है, तो होएगा, वैसे नहीं। ठीक है, जो बराबर होएगा फिर वो लाइन के उत्ते ही होएगा पॉइंट। आओ अगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, वरीफाई। वरीफाई मैंने पुष्टि करो, चेक करो, सिद्ध करो वैदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इदा दी हुई लाइन कहते सिद्ध करो कि या मतलब चेक करो कि पुष्टि करो कि कन्फर्म करो कि जिहड़ा डी हैगा वो ए जी का मध्य बिंदु है या नहीं। सानू बच्चों पहले पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु किदां पता लगता है ना, हुण वो सीखांगे पहले। देखो यह गल नोट कर लो, डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए जी इफ ये डी वाड़ दो, फिर इफ ए डी इज इक्वल टू डी जी। बस यह गल याद रखनी है। जे यह गल सिद्ध हो गई तो फिर मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, नहीं तो नहीं है। बस इन्नी जी गल है। यह लाइन में बच्चों तुसीं कंठ कर लो, डी तदों ही ए जी का मध्य बिंदु होएगा। पंजाबी वाले लिख लो, डी ए जी का मध्य बिंदु तदों होएगा जे, तो मैं डी नूं इहदे विच वाड़ दिता तो ए डी बराबर डी जी। देखो ए डी बराबर डी जी, अगर ए डी बराबर डी जी है दैट मीनस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हुण मैं की करना बच्चों, मैं ए डी की लंबाई नापांगा तो डी जी की लंबाई नापांगा, तो मैनूं पता लग जाएगा कि बराबर है कि नहीं है। और देखिए हुण ए डी की किहड़ी लंबाई है, ए डी देखो इत्थों शुरू करना ना, देखो ए डी कितना है, ए डी ए इत्थे हैगा, इत्थों जी 0 शुरू हो रहा है, ए इत्थे हैगा, सो डी इत्थे हैगा 4। सो ए डी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ए डी की लंबाई हो जाएगी, यहाँ तो तुम सीधा भी काउंट कर सकते हो 1 2 3, यहाँ इत्थे 4 है तो इत्थे है 1, सो 4 - 1 बराबर 3 यूनिट, 3 इकाइयाँ, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर जो भी कह लो। ठीक है, तो डी जी कितना, डी जी है देखो डी तो लैके जी तक कितने गैप आ गए, 1 2 तो 3, यह भी आ गया। तो यहाँ मैं इदा कर सकता, जी तो है 7 तो डी तो है 4, सो 7 - 4 बराबर 3, और लै भी लै दोनों बराबर आ गए, मज़ा आ गया। दैट इज़ ए डी इज इक्वल टू डी जी, दस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्योंकि ए डी डी जी के बराबर है, इस करके डी जड़ा है वो ए जी का मध्य बिंदु है।
ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਓ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ नहीं है। ठीक है बच्चों, आओ आगे चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी। हुण देखो बच्चों उल्टा सवाल आ गया ताकि तुहाडी गल पूरी स्पष्ट हो जाए, तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। जिहड़ा पंजवां सवाल सी वो भी मिड पॉइंट दा सी, मध्य बिंदु दा सी। हुण यह सवाल भी मिड पॉइंट दा है। कहंदे इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहले तो क्या ना भी मध्य बिंदु सिद्ध करो, हुण उन्होंने मिड पॉइंट दे दिता है। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, where A, B, C, D lie on a straight line, say Y A B is equal to C D। बड़ा मज़ेदार सवाल है बच्चों। यह सवाल बच्चों हो सकता है तुहानूं पहली बारी समझ ना आए, इस करके इस सवाल नूं पहले नोट कर लो तो बार बार पढ़ो तो बार बार करो। जिले तुसी इस सवाल नूं 2-3 बार 3-4 बार कर लोगे तुहानूं चंगी तरह पक्का हो जाएगा। पर बड़ा मज़ेदार सवाल है बच्चों। आ देखिए, कहते बिकॉज बी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो जे मिड पॉइंट है बी तो इत्थे विच बी वाड़ देना है तो ए बी बराबर बी सी, इस करके देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या है उन्होंने देखो कहते ना बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जे बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ਇਹਦਾ मतलब कि बी विच वाड़ता तो ए बी बराबर बी सी करता। यह गल सिद्ध हो गई। यह गल तुहानूं मैं पिछले सवाल में समझाई है जे इदां होवे ते। फिर अगला गल कहते हैं एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बिकॉज सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी तो मैं सी बी और डी दे वाड़ता, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हुण देखो साढ़े को दो चीज़ां आ गई, कहते ए बी बराबर बी सी तो बी सी बराबर सी डी। हुण ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी सी डी के बराबर है। तो जे बच्चों जे इदां होवे तो ए बी सी डी के बराबर हो गया। देयर फोर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी सी डी के बराबर है। तो जे इदां होवे तो ए बी सी डी के बराबर हो गया। जे एक्स वाई के बराबर है तो वाई जैड के बराबर है, यदा मतलब होया एक्स जैड के बराबर है। जे पी क्यू के बराबर है तो क्यू आर के बराबर है, यदा मतलब पी आर के बराबर है। ठीक है बच्चों, यह गल चंगी तरह दिमाग च बिठा लेनी है। सो यह गल हैगी बच्चों, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू सी डी। यह साडा सिद्ध हो गया, सवाल हो गया। हुण आओ बच्चों आखिरी सवाल, जिहदे 5 पार्ट ने, थोड़ा जिहा वड्डा सवाल है पर बड़ा मज़ेदार सवाल है, वो लग रही है हुण। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कहते ड्रॉ 5 ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल बच्चों किहड़े हुंदे ने जिहदे 3 भुजावां हुंदियां ने। कहते 5 त्रिभुज तुसी खिच्चो, ड्रॉ करो कोई भी, एंड मैजर देयर साइड्स। हुण लाइन नूं असीं मैजर करना सीख ही लिया बच्चों, रेखाखंड नूं किहदे नाल, फुट्टे नाल भी ते प्रकार नाल भी, जिहड़ा सूआ हुंदा है ना, डिवाइडर नाल भी। ते तुसी डिवाइडर दे नाल मैजर करना है। मैं तुहानूं 5 ट्रायंगल ड्रॉ करके दे दिते ने, सवाल करके दिखा दिते ने, तुसी भी रफ पेज से इन्हां नूं ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, चैक इन ईच केस, हर केस विच, हर 5 जिहड़े ट्रायंगल ने, हर एक केस विच, हर एक उदाहरण विच देखो, इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस दैन द थर्ड साइड्स। ठीक है, कि इदां हो रहा है कि 2 रेखावां दा, 2 रेखाखंडां दा, 2 भुजावां दा जोड़ जिहड़ा है वो तीजी साइड तो हमेशा घट हुंदा है। किस तरह हुंदा है, आओ देखिए। हुण बच्चों मैं एक त्रिभुज ले लिया है वाला ए बी सी, जिस तीनों भुजावां बराबर ने। ठीक है, 4 4 4 इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो मैं तो कोई भी 2 ले लिया, ए बी जमा बी सी 4 जमा 4 8 तो तीजी हैगी 4। दस सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट लैस दैन दी थर्ड साइड, मतलब कि यह जोड़ है वो इस तो वड्डा आ रहा है। जोड़ जिहड़ा है वो तीजी भुजा तो छोटा नहीं है। यह तो हो गया पहला उदाहरण। आओ हम दूजे वाल चलीए। दूजा त्रिभुज मैं इदां लै लिया, जिस 2 भुजावां बराबर ने तो 1 भुजा बराबर नहीं हैगी। यह सारे त्रिभुजां बारे तुसीं अगली क्लासां च पढ़ोगे। ठीक है, हुण इन ट्रायंगल ए बी सी मैं की कर लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो मैं ए बी जमा बी सी कोई भी 2 ले लिया, ए बी जमा बी सी 6 जमा 4 10 तो ए सी इज इक्वल टू 6। इत्थे फिर ज़्यादा आ रहा है, 10 सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट लेस दैन द थर्ड साइड, अर्थात 2 भुजावां दा जोड़ तीजी भुजा तो छोटा नहीं है, जोड़ वड्डा है। ठीक है, आओ तीजा उदाहरण देखिए। तीजा उदाहरण बच्चे मैं यह लै लिया, एक त्रिभुज है समकोणी त्रिभुज, जिथे 90 डिग्री एंगल है, यह भुजा होगी 3 यूनिट्स, 4 तो 5। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4, सी ए इज इक्वल टू 5 यूनिट्स।
नाउ ए बी जमा बी सी, चलो मैं सब तो छोटियां लेना क्योंकि असीं छोटा सिद्ध करना है ना, तो मैं छोटियां लै रहा। 3 जमा 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड ए सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। दस दी सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट लैस दैन दी थर्ड साइड। जिवें यह वड्डी लेना फिर तो होर वड्डा आ जाएगा। 4 जमा 5 9 3 तो वड्डा है, 4 जमा 3 7 5 तो वड्डा है। ठीक है बच्चों, 3 जमा 5 8 4 तो वड्डा है। सो सारियां जोड़ वड्डा आ रहा, जोड़ छोटा नहीं आ रहा। आओ अगे चलिए। हुण बच्चों मैं एक ट्रैंगल लै लिया, ए वाला, ਇਹਦੀ यूनिट हैगी 5, हैगी 13, है 9.5। सो इन ट्रैंगल ए बी सी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 13, सी इज इक्वल टू 9.5 यूनिट्स। सो मैं सब तो छोटियां लिया पहले, है ना, क्योंकि मैं यह देखना है कि उन्होंने जोड़ छोटा है कि नहीं है, तो मैं सब तो छोटी लाँगा तो ही छोटा आएगा। सो ए बी जमा सी इज 5 जमा 9.5 इज इक्वल टू 14.5 यूनिट्स, तो बी सी इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। लो जी फिर गल नहीं बनी। सो जोड़ इज अगेन ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड, दस दी सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट लैस दैन दी थर्ड साइड। ठीक है बच्चे, आगे चलिए। आखिरी एग्जाम्पल, हुण मैं यह वाला लै लिया इदा त्रिभुज, एक ट्रैंगल होर लै लिया। ये 4 हैगी है, ये 14 हैगी, 17 हैगी। ठीक है, सो इन ट्रैंगल ए बी सी इज इक्वल टू 14, बी सी इज इक्वल टू 17, सी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ए बी जमा बी सी ए मैं जोड़िया, जिहड़ियां सब तो छोटियां ने। ए बी जमा सी ए इज इक्वल टू 14 जमा 4 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, तो बी सी इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। अगेन the sum is more than the third side, thus the sum of two sides is not less than the third side। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ, ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡਸ। The sum of any two sides of a triangle is never less than the third side। So 5 उदाहरणों में असीं देखिया बच्चों कि sum of two sides is never less than the third sides। कभी इक्वल भी नहीं होएगा, बराबर भी नहीं होएगा, it is always more than the third sides। So प्यारे विद्यार्थियों, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक्सरसाइज 5.1 ਇੱਥੇ ਹੀ समाप्त ਹੁੰਦੀ है। सो अगले वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ 5.2 5.3 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।